ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਐਥਲੀਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰ ਪੇਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਬਿਫੋਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਆ 90.6 kg, ਮਤਲਬ 90 ਕਿਲੋ 600 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਮ ਵੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਈ, ਹੋਰ ਲੀਨ, ਹੋਰ ਫੁੱਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫॉर द बेस्ट वाहिगुरू ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਰਾਈਟ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸੋਈਆਂ ਹੁਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਗ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫੁੱਲ ਅਪਡੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਧਮਾਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਈਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਹੋ। ਆ ਪਾਓ ਆ ਕੇ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਘੱਟ ਚੇਤਾ ਯਾਰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਐਥਲੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਮੋਮ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ, ਮਾਈ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਡੈਡੀ, ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਦਰ, ਮਨਦੀਪ, ਅਰਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ। ਮਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੰਦੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। थोड़ा कैसे देखो इस साइड हो।
It'll waist held down like a paperweight. She just wanna come around, but I'm in a money needed now on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, way. You guys spread out. Spread out. You guys are like sitting in each other's lap. Spread out. Face the back. Face the front. Face the back. You guys face the back. Face the front. Okay, make sure we can see your number. I can't see. Okay, 153. 156 and 123 switch. You guys face the back. Okay, face the front. Okay, I want order 123, 128, 121, and 156 to go back to diagonal. And let's bring this group in. Let's have 127 and 117 switch. You guys face the back. Face the front. $117 and $124 switch. Face the back. Face the front. Guys, face the back. क्या चाह रहा है ये तो वहाँ जाना है Face the front. All right, you four go back to the diagonal. Let's bring out competitor 118. यस वी आर गुड टू गो। हेलो जी, सत श्री अकाल। होप कि आप सब ठीक हो गए। इसको मैं हिंदी में बनाऊंगा। सो आफ्टर विनिंग भारत प्रो शो 5th प्लेस, मैं आ गया हूँ जी घर। ये मेरा सेकंड मेडल है, इससे पहला भी दिखाता हूँ।
सो ये हाँ, इससे पहले ये जीता था 5th प्लेस वाला लास्ट ईयर इन मुंबई, और ये जीता हमने दिल्ली में। सो थैंक यू सो वेरी मच यू गाइस। आधे पीछे थे, अब आपको दिखेगा नहीं दिखेगा इसके पीछे 2023 2024। सो एनी हाउ थैंक यू सो वेरी मच गाइस। ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, बट मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर सका। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगा और उसमें सब आपके आंसर्स दूँ आपके क्वेश्चंस का। सो सबसे पहले 5th प्लेस, यस मुझे 5th प्लेस मिली है और आई एम वेरी मच हैप्पी विद द जजिंग। और क्या कमी रह गई या क्या प्लस पॉइंट थे, सबसे पहले प्लस पॉइंट पे बात करें तो प्लस पॉइंट पे हमारी आज तक का ये बेस्ट पैकेज था। मैं हैवीएस्ट ऑन स्टेज गया हूँ, लास्ट ऑन स्टेज वेट मेरा था अप्रॉक्सीमेटली इन ताइवान 86 kg। तो इस साल मैं 89 kg ऑन स्टेज था, मींस 3 किलो हमने बढ़ाया है। और वो 3 किलो भी मेरी कंडीशनिंग थी, जो वो ऑल टाइम बेस्ट पे कंडीशन आया था मैं इस बार। और आप देख सकते हो मेरी स्टायरेशन इन माई ऑब्लिक्स, माई एब्स, मेरी बैक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि हमने जो क्रिटिसिज्म मिला हमें पिछले शो में से, क्रिटिसिज्म कह लो या हमारा जो जजेस से फीडबैक था कि बैक की थिकनेस, सो बैक की थिकनेस में अच्छा खासा काम किया है। और शोल्डर्स भी किया, शोल्डर्स पे भी काम, चेस्ट पे भी किया, लेकिन वो उतनी 3D उतनी फुलनेस नहीं कंपैरेटिवली हम शो कर पाए। दैट वाज द रीज़न जो जजेस से फीडबैक मिला है। कंडीशनिंग टॉप नॉच, प्रेजेंटेशन, पोजिंग ऑल टाइम बेस्ट, पैकेज वाज गुड, बट लैकिंग इन साइज़। चेस्ट और डेल्ट्स पे साइज़ हमें थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव शोज़ हैं, तो प्रो शोज़ में टॉप 5 प्लेसिंग करना भी बहुत बड़ी बात है। तो जो हेड जज स्टीव ने हैरी बाजी को फीडबैक दिए, उसमें कहा कि ही हैज़ अ पोटेंशियल कि इस फिज़ीक में ये फर्स्ट कॉल आउट मटेरियल है, ये हर शो में इस पैकेज के साथ, इस साइज़ के साथ टॉप 5 या टॉप 3 में आएगा। लेकिन हमें टॉप 5 या टॉप 3 नहीं चाहिए, हमें नंबर 1 चाहिए, क्योंकि ओलंपिया क्वालिफिकेशन फर्स्ट प्लेस वाले को मिलती है। सो उसके लिए हमें अच्छा खासा जो है वो चेस्ट पे मास बिल्डअप करने की ज़रूरत है और शोल्डर्स पे मास बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो ये तो हमें जजेस के फीडबैक मिले। उसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे हार्डशिप्स मैंने फेस किए ड्यूरिंग दिस प्रेप। इसमें से मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ कि इस बार मेरी जो फिज़िकल हेल्थ थी उसने मुझे थोड़ा सा टेस्ट किया। सो पहले तो मुझे IBS की प्रॉब्लम है। सो IBS की प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो डाइजेशन है वो मेरा साथ नहीं देता। इट मीन्स कि मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है मेरे साथ आफ्टर ताइवान प्रो शो टू इंडिया प्रो शो। इसके बीच में हमारे पास तकरीबन 6 महीने का टाइम था, उसमें मैं अच्छे से बल्किंग नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डाइजेस्ट ही कुछ नहीं हो रहा था। सो इन प्रेप ऑल्सो मैं बहुत स्ट्रगल किया, मैंने और हैरी भाजी ने, टू फिक्स इट, बट हुआ नहीं। वो चीज़ें फिक्स हुई कुछ हद तक हो जाती थी। सो इसके साथ बहुत बड़ा स्ट्रगल करते करते हमने ये प्रेप की है, दैट फिर भी समहाउ वी मैनेज हो गई चीज़ें। और शो से 1 हफ्ते पहले मेरा टेंडन जो है शोल्डर का वो टियर हो गया था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 1 हफ्ते पहले नहीं, ये 10 दिन पहले, सो 10 दिन पहले मेरा टेंडन टियर हो चुका था और शोल्डर का। और मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि इसको टाइम लगेगा और आपकी मूवमेंट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। सो मेरा जो हाथ है, इधर वाले शोल्डर की थी, सो मेरा जो ये हाथ है ये ऐसे पीछे नहीं जा रहा था। मोबिलिटी इशू चलो है, वो बात अलग है, लेकिन ये हाथ उठ ही नहीं रहा था, ये पीछे ही नहीं जा रही थी ये इस साइड वाली।
सो वो वजह से मैं कुछ लास्ट के दिनों में अपने शोल्डर को उस हद तक ट्रेन या पुश नहीं कर सका। उससे पहले मैंने अच्छा खासा मैंने बहुत हैवी ट्रेनिंग लगाई है इस ऑफ सीज़न में जो पीछे गया है। मैंने मतलब अपने लाइफ का बेस्ट लिफ्टिंग मैंने अगर कहूँ तो मेरा हाईवीएस्ट आज का 50 केजी डंबल प्रेसेस की मैंने इस साल। चेस्ट प्रेसेस भी मैंने, इंक्लाइन प्रेसेस भी मैंने डंबल प्रेस के साथ 50 केजी ईच डंबल मैंने किया। बट जो लास्ट में वो जो एक फुलनेस के लिए जो मुझे हैवी वर्कआउट, हैवी सेशन चाहिए थे, वो मेरे से नहीं हो सका। नहीं तो मेरे शोल्डर्स इतने अच्छे और इतने बढ़िया तरीके से साथ इस बार आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन चलो एनी हाउ, कुछ चीज़ें, कुछ हार ज़रूरी होती है ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए और आपको कुछ बड़ा देने के लिए। और शायद नहीं, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इनमें कि भगवान ने अगर ये मुझे चीज़ दी है, मेरे लिए ये बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके बाद मुझे ग्रोथ के लिए टाइम मिला है। अब मेरा थोड़ा डाइजेशन ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट 1 महीने की 4 वीक्स की पीसीटी करके उसके बाद 1 महीना और हम 2 महीने का प्रॉपर हर चीज़ से ऑफ लेके देन इन अगस्त हम दोबारा से अपनी गेनिंग जो है वो स्टार्ट रखेंगे। और गेनिंग स्टार्ट करने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारे डेल्ट्स और चेस्ट रहेगी। और इन बिटवीन द टाइम मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी शेप है मैं इसको मेंटेन करके रखूँ, जितना लंबा मेंटेन करके रख सकता हूँ। और इसके बाद ग्रोथ की तरफ हम बढ़ें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें मुझे स्पेशली काम करने की ज़रूरत थी और है भी, विच इज़ यू नो माई मेंटल हेल्थ। और बिकॉज जो आईबीएस का इशू रहता है वो एंजाइटी का इशू है। आपको एंजाइटी होती है तो आपका पेट ख़राब होता है और कुछ नहीं है। सो इन चीज़ों पे भी मुझे जो फोकस करना है। सो ये थी मोटी मोटी बातें। मैं किसी चीज़ को ये पहले मैंने पोस्ट नहीं की कोई चीज़ें इंजरी की या आईबीएस का नहीं बताया, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि सिंपैथी पहले से ही वो बिल्डअप कर रहा है ग्राउंड की, हाँ कि भी अगर नहीं प्लेस आई तो मैं ये कह सकता हूँ नहीं ये, हाँ बट ये चीज़ें थी, ये मेरे साथ ये स्ट्रगल था, मैंने किया। बट आई एम लकी इनफ एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरी 5th प्लेस आई है। क्योंकि शो का आप जो स्टैंडर्ड देखो, जो लाइनअप देखो, वो बहुत ही जैक्ड था। उसमें 5th प्लेस करना, प्रो शो इज़ अ बिग थिंग मैन। किसी भी प्रो शो में आप टॉप 3 टॉप 5 में आते हो, बहुत बड़ी बात है वो। अगेन हमारा इंडियन भाई जो एंड हिज कोच कृष्णा जो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया है, अमित, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर एंड बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। You are not only representing yourself on Olympia stage, you're gonna represent all of us। और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्वीट लड़का है। और ये दिस वीडियो डेडिकेट्स टू यू ब्रो। कम टू पंजाब, यहाँ बैठे इसी पे बैठ के हम खाना खाएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और बाकी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिज कोच। कृष्णा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हम मिलते तो हम वैसे शोज़ पे ही हैं, कभी बात कम होती है ऐसे, बट जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं। एंड वरदान मेरा भाई है और पंजाबी भाई है अपना। सो आई लव दैट गाय ऑल्सो। वरदान, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा मिलती है उससे, भाई से। और अनीक के बारे में कहना चाहता हूँ, वेरी गुड फिज़िक और गुड 3rd प्लेस फिनिशर। एंड जीजो, वो तो भाई है अपना, शुरू से डे 1 से ही वो उसने मेरे साथ compete करना शुरू किया है ना। प्रो शो में प्रो कार्ड मिला उसको लास्ट इसी शो में। और उसके बाद आज अभी उसने उस शो में, मुंबई शो में उसकी 4th प्लेस आई। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, सच में। मैं जीजो के लिए बहुत खुश हूँ, मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। और एलेक्स, थैंक यू ब्रो फॉर कमिंग इंडिया। यू रेस्ड द बार मैन and you are really doing good job on your channel. Keep doing good work. We all Indians are watching your channel and it is so inspiring and motivational. And last but not the least, to my coach Harry Sandupa ji and his family, my dear Pabi ji. She is like my elder sister. Not like my elder sister, she is my elder sister.
उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, जैसे मेरी मम्मी मेरे घर में मेरा ख्याल रखती हैं, वो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे घर में हमें हैरी भाई के घर जाके ना सबसे बड़ा बड़ा पता क्या है, सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको किसी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि उन्होंने सुबह पूछना है, अब सुबह भी पूछना है, एक दिन पहले पूछना है, लवप्रीत क्या चाहिए, अगले दिन क्या खाना है आपको, हाँ जी भाभी ये खाना है, अगले दिन सारे मील बन के। और यस, सुनील हमारे कुक जो हमें रोज़ खाना बना के देते थे, मुझे और चैतन्या को, एंड big congratulations to Chaitanya also, my teammate, very humble guy, God's kid, and I'm very happy for his placing as well. सेकंड प्लेस मेंस फिजिक में आया, मेंस क्लासिक फिजिक में आया उसका। एंड हैरी पाजी के लिए तो यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हैरी पाजी को मैंने बहुत कम अपनी ज़िंदगी में उनकी आंखों में से कभी कोई आंसू देखा है, मैंने उनको भी नहीं बताया ये। बैक स्टेज पे जब मैं आया ना, और मैं और चैतन्या आए, एंड चैतन्या की प्लेसिंग पड़ गई थी और उसके बाद मैं जाने वाला था, एंड हैरी पाजी, आई सॉ अ टीयर इन हिज आई, और मैंने वो देखा यार, मैंने उनको कभी नहीं ऐसे देखा था, और मेरा दिल मतलब ऐसे टूट पिघल गया। मैंने उनको, मैं हैरी पाजी कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, हम अगली बार कर लेंगे। तो पाजी टुक अ पॉज, उसके बाद हाँ हाँ कहते कोई गल नहीं कर लेंगे, और वो मेरे से छुपाना चाह रहे थे लेकिन नहीं। आई लव माई कोच सो मच, हैरी पाजी वी लव यू सो मच, पाबी जी आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड माई फैमिली, ये सारी मेरी फैमिली ही है। मेरी फैमिली आई थी इस बार शो देखने, माई मदर, माई सिस्टर, माई डैड, माई नाना जी, और उन सबको भी आपने बहुत प्यार दिया। और एंड में आप सबका बहुत 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 थैंक यू, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इस ड्यूरिंग दिस प्रेप ऑल्सो, और पीछे से भी देते आ रहे हो, और मेरे साथ पिक्चर्स ली, मुझे स्टोरीज़ में मेंशन किया। मैं जिनकी स्टोरीज़ रीपोस्ट नहीं कर सका, मेरा थोड़ा इंस्टाग्राम में पता नहीं क्या ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से नहीं हो सका, सो सॉरी फॉर दैट गाइस। एंड आपका प्यार मुझे यहाँ तक लेके आया है, आगे भी आपका प्यार मुझे और आगे लेके जाएगा। आप इसी तरीके के साथ अपना प्यार बनाए रखें, और लवप्रीत सिंह सून इस 5th प्लेस मेडल को 1st प्लेस पे आपके लिए, अपने देश के लिए लेके आएगा। टाइम लगेगा, अगली बार आएंगे तो वन साइडेड करके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग मी। आप सब ठीक रहो, अच्छे रहो। वाहिगुरू सच्चे पातशाह शहीद सिंह हमेशा सहाय रहन, चढ़दी कला च रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।